संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਫਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मनुष्य जीवन कितना अनमोल है।
84 लाख योनियों के बाद हमें यह जन्म मिलता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसे कैसे सार्थक बनाएं? अधिकतर लोग इसे केवल जानकर भी अनदेखा कर देते हैं, परंतु जब जीवन में पूर्ण सद्गुरु का मार्गदर्शन मिलता है तो यह वास्तविकता केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाधान भी बन जाती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ निवासी दिनेश जी। एक समय था जब दिनेश जी किसी भी धर्म या ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन उनके बड़े भाई, जो पहले ही पूर्ण सद्गुरु की शरण में जा चुके थे, ने उन्हें सत्संग सुनने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे दिनेश जी को एहसास हुआ कि यह अनमोल जीवन केवल सांसों का खेल नहीं है, बल्कि इसे भक्ति और सेवा से सफल बनाना चाहिए। उनकी रुचि बढ़ी और उन्होंने संत जी से नाम दीक्षा ली। आज वे बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति ने उनके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल दिया। तो आइए उनके शब्दों में सुनते हैं दिनेश जी की यह प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दिनेश सोनवानी है। दिनेश जी आप कहाँ से हैं? जी मैं ग्राम जोरा, ब्लॉक बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़ से हूँ जी। दिनेश जी संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 29 तारीख 10वां महीना 2016 में नाम दीक्षा लिया जी। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले वैसे भी तो भक्ति में मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं। मौज मस्ती करना यही सब मुझे अच्छा लगता था, लेकिन घर में कुछ दिक्कत होने के कारण मम्मी पापा जो करते थे तो उनका साथ थोड़ा बहुत सहयोग कर दिया करता था जी। बाकी कोई भक्ति में इंटरेस्ट नहीं था मुझे। सर आपने बताया कि आपकी भक्ति में कोई रुचि नहीं थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का क्या कारण बना? जी मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसा है, थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। मेरे बड़ा भाई है, वो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिए हुए थे 2013 से। तो वो टीवी में सत्संग लगाकर देखा करते थे, तो उनके साथ साथ मैं भी थोड़ा बहुत देख लिया करता था। तो धीरे धीरे ऐसे सत्संग देखते देखते मुझे पता चला कि भाई ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। संत रामपाल जी महाराज ने बताया सत्संग में कि 84 लाख प्रकार के गधा कुत्ता के योनि में भटकने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है, और इसमें भी हम भक्ति नहीं करते, सद्गुरु से दीक्षा लेकर नाम जाप का नहीं करते, तो फिर हमें 84 लाख प्रकार के गधा कुत्ता की योनि में भटकना पड़ता है, स्वर्ग नरक में भी जाना पड़ता है। तो ये सब मैंने सुना, और संत रामपाल जी महाराज ने ये भी बताया कि एक ऐसा लोक है जहाँ न मृत्यु होता है न जन्म होता है, और वहाँ सब सुख सुविधा उपलब्ध है कि किसी चीज़ का नाश नहीं होता। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ ये सुनकर, और फिर मेरे इंटरेस्ट बढ़ते गया। तो धीरे धीरे मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, और बड़े भाई के साथ साथ रोज़ 1 घंटा सत्संग सुना जी। तो फिर मेरे धीरे धीरे ज्ञान समझ आया, तो 2016 में जाकर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली। दिनेश जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत लाभ मिले। परमात्मा ने इतने लाभ दिए हैं कि हमें याद भी नहीं रहता जी। तो मुख्य जो मुझे याद है मैं वो बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमारे घर में भूत प्रेत की समस्या थी जी। भूत प्रेत हमारे सामने में दिखा करते थे। मेरे बड़े भाई को बहुत परेशान किया करते थे। मेरी छोटी बहन है तो उसका गला दबा देते थे, मुँह से झाग निकल जाता था जी। तो और डराने का भी बहुत मतलब वो करते थे भूत प्रेत। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से तब से दीक्षा लिया। उसके बाद तो हमारे घर में ना कोई भूत प्रेत है और ना ही ऐसी कोई समस्या है जी। और एक लाभ ऐसा है, एक बार हम लोग बाइक में जा रहे थे, मेरी पत्नी भी साथ में थी। तो अचानक से एक साइकिल वाला सामने आ गया, तो उससे मेरा बाइक टकरा गया जी। तो मेरी पत्नी पीछे में बैठी हुई थी, तो उनका साड़ी पूरा 2 टुकड़ा हो गए। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि पूरा साड़ी 2 टुकड़ा हो गया, लेकिन मेरी वाइफ को कुछ भी नहीं हुआ, 1 खरोच तक नहीं आया हम दोनों को जी। और एक लाभ ऐसा है, एक बार मैं ऐसे ही काम कर रहा था तो बिच्छू मेरे पैर के नीचे आ गए। तो उसने जैसे मुझे डंक मारा तो मुझे लगा कि कोई कांटा चुभ गया है। मैंने पैर हटाकर देखा तो बिच्छू ने मुझे डंक मारा था। तो मैंने परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया, और उनका जो प्रसाद है वो मैंने लिया। और उसके बाद ना तो मैंने डॉक्टर के पास गया, ना कोई झाड़ फूँक कराया, एकदम सही हो गया जी, और बिल्कुल स्वस्थ रहा। और इसके बाद एक मेरा दूसरा एक्सीडेंट था। एक बार क्या हुआ कि मेरे फैमिली को कहीं जाना था, तो बस निकल चुकी थी, मेरे फैमिली वाले उसमें चले गए थे, और बच गए थे मेरे दीदी और एक मेरे 1.5 साल की भांजी थी जी। तो हम लोग बस को ओवरटेक करने के चक्कर में बहुत तेज़ी से बाइक चला रहा था मैं। मेरे बाइक कम से कम 65-70 की स्पीड में था। अचानक से एक ब्रेक आया, तो मैंने ब्रेक लगाया तो मेरी दीदी उछल के ब्रेक के कारण से नीचे रोड पे गिर गई जी। तो रोड पे गिरी तो वो कम से कम 20 फुट घिसटती हुई गई।
तो उसमें मेरी छोटी सी भांजी भी थी, तो उनको एक खरोच तक नहीं आया और मेरी दीदी का फेस पूरा छिल गया था जी। तो पर संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी लगभग 5 दिन में ही पूरा कंप्लीट रिकवर हो गया जी। एक लाभ और ये हुआ कि मेरे पापा के पैर में बहुत बड़ा सूजन था जी, और पूरा मतलब घुटना के नीचे से मवाद भर गया था उनके पैर में, और डॉक्टर को भी दिखाते थे तो वो दवाई माटी देते थे, बाकी दवाई माटी से कोई काम नहीं करता था। और यहाँ तक भी बोले थे कि इनका पैर काटना भी पड़ सकता है। तो फिर धीरे धीरे ऐसे दवाई माटी चलती रही, फिर दवाई माटी से कुछ काम नहीं हुआ ना, तो पिताजी ने दवाई माटी खाना ही छोड़ दिया जी। तो इसके बाद क्या हो कि ऑटोमेटिक संत रामपाल जी महाराज जी के दया से वो धीरे धीरे पूरा ठीक हो गया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? जी, संत रामपाल जी से दीक्षा लेना आजकल बहुत आसान हो गया है। चैनल पे 7:30 बजे गुरु जी का सत्संग आता है, तो उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, इसमें नंबर दिया हुआ होता है, और उसमें आप कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप www.jagatgururampalji.org पर भी जाकर डिटेल पता कर सकते हैं जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्संग। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और सबसे अच्छी किस्मत आप जी की है कि आपको परमात्मा ने शरण में ले लिया। आप कितनी पुण्यात्मा हो ये स्वयं को ज्ञान नहीं होता। आपके पुण्यों की, आपके शुभ कर्मों की जो जानकारी इस दास को है वो आपको नहीं है, क्योंकि ये दास परमात्मा के विधान से कुछ परिचित हुआ है। परमेश्वर ने अपनी महिमा आप ही बताई है। जब तक हमें परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं मिला था, कोई भी संत, कोई गुरु कुछ भी उआ बाई बकता था, कुछ भी ज्ञान सुनाता था, हमें अच्छा लगता था। जब से परमेश्वर के इस तत्व ज्ञान रूपी इस टॉर्च का प्रकाश हमें मिला है, उसके बाद हमें इसके रोशनी में पता चला कि ये सब उआ बाई बक्या करते थे। तो परमात्मा के इस ज्ञान से पता चला है, परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब की तो सतगुरु शरणाली। इसके साथ साथ एक और बताते हैं भगवान कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे जति जहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। परमेश्वर ने बताया है कि बहुत बड़े विद्वान भी मिल जाएंगे, धारावाहिक प्रवचन करने वालों की भी कोई कमी नहीं मिलेगी। परमात्मा ने अपनी वाणी में बताया कि ज्ञानी कोट अनंत हैं, श्रोता कोट अनंत और वक्ता कोट अनंत हैं, बिरले साधु संत। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया कि सीता जैसी पतिव्रता बहनों की कमी नहीं, औरतों की कमी नहीं, बहुत मिल जाएंगी। सुखदेव जैसे यति पुरुष भी बहुत होंगे। गोरखनाथ को परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त हुआ था,
हमारे अंदर एक सबसे बड़ा अवगुण ये भी है कि हम कृतघ्नी भी पैरेलल चलते हैं, कृतघ्नी तुरंत हो जाते हैं। गोरखनाथ जी को परमात्मा से ज्ञान हुआ, उसके बाद स्वयं ही वक्ता बन गया और इस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को जगह जगह सुनाकर और बहुत बड़ा विद्वान सिद्ध हो गया। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान, सीता सी बहु भारिया, ये संत दूर स्थान, संतों के घर बहुत दूर है। इस तरह की फोकट महिमा तो ना जाने कितनों की होंगी, लेकिन ये तत्व ज्ञान मिलना और परम संत की शरण मिलना, पूर्ण परमात्मा की जो शरण मिलना, ये तो बहुत युगों पर्यंत कभी दाव लगता है। ये आपका दाव लगा है। अब इस मार्ग को आपने सफल बनाना है। परमात्मा की शरण मिली है, आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपनी जानकारी आप ही बताते हैं। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी वे स्वयं ही दे सकते हैं, ये तो अंडरस्टूड है। हम इस संसार की उत्पत्ति के कितनी अटकल डालें, हमें कह का पता नहीं। चाहिए साइंटिस्ट बता दें इतने ऐसे होकर ऐसे होकर ऐसे हो गए, इतने दिनों में ये पृथ्वी बनी, इतने में फलाना बना, ये तो अटकलबाजी है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है और ऐसा ही वो करता है। इसके प्रमाण आप संत ग्रंथों में भी देख रहे हैं। पवित्र चारों वेद परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है और जो परमेश्वर की महिमा ये वेद बताते हैं, जिन वेदों को हम शिरोधार्य मानते आए हैं और इनको यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं, इनके अंदर परमात्मा कबीर जी की महिमा लिखी हुई है और वही लीलाएं परमेश्वर कबीर देव जी ने ही की हैं। उस दहाड़क कबीर ने, जुल्हा कबीर जो काशी में आया था, बनारस में आया था। तो वो परमात्मा आके बताते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डारे। परमात्मा स्वयं बताते हैं कि आप जिस परिवार में रह रहे हो उसको जानो एक वृक्ष है, पेड़ है, उसमें आप पत्ता लगे हुए हो और जिस समय वो पत्ता टूट कर गिर जाता है पुनः स्थापित नहीं हो सकता। ऐसे ही एक परिवार का सदस्य जिसकी मृत्यु हो जाएगी वो पुनः वहां नहीं आ सकता, उसी स्थिति में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा याद दिलाते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो आए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, यो मुख में भलो ना चाम। परमात्मा इस मानव शरीर की कितनी वैल्यू बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं कि यदि इससे परमात्मा की साधना भक्ति करते हो तो ये मानव शरीर जी रहे हो, मानव जीवन जी रहे हो, मानव शरीर का तुम सदुपयोग रहे हो।
और परमात्मा यहां तक बता रहे हैं कि इस मुख में, इस जीव की केवल एक आवश्यकता है, भगवान के गुण गाने की। इसके अतिरिक्त यदि हम भगवान की साधना इससे नहीं करते हैं, गुणगान नहीं करते हैं, तो इसको कहते ये मुख में चाम अच्छा नहीं। इससे अच्छा तो इसे न काट के फेंक दे। अपने आत्माओं, ये परमात्मा ये नहीं कहते कि इसको काट दो, इसका सदुपयोग करो। यदि हम परमात्मा के गुणगान नहीं करते हैं तो इस जीव का के प्रयोग करते हैं कि तो झूठ बोलने पेट के लिए। किसी को ऐसा वचन कह देते हैं, जैसे कहते हैं, परमात्मा कहते हैं हित पराई आत्मा और जीव बांध तलवार। एक तगड़ा व्यक्ति है या उच्च अधिकारी, किसी भी प्रकार से जो कुछ उससे शक्तिशाली है किसी भी तरीके से, और नीचे वाले यानी कमजोर व्यक्ति को ऐसे वचन बोल देता है, उसकी आत्मा रोती रहती है। और कहते हैं उस जीव ने तलवार का काम कर दिया, और एक अपने पेट के लिए यानी अपने रोजगार के लिए जीव ना जाने कितनी झूठ बोलते हैं, और वो सारे पाप कमावा हम। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। परमपिता परमात्मा हमें ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि काल भगवान ने सारी उल्टी रीति हमारे चिपका रखी है। हम इस काल के जाल में इतने फंस गए हैं, फिर हमारा एक समाज बन गया है, उस समाज के अनुकूल हमें सभी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो हमें फिर बहुत परेशानियां होती हैं। जैसे हमारे समाज में पुत्र की प्राप्ति अति आवश्यक मान रखी है कि यदि पुत्र नहीं होता है तो जीवन व्यर्थ है, चाहे कन्या कितनी हो जाओ। तो ये काल भगवान का एक जबरदस्त जाल है जो हमारे ऊपर फैला रखा है उसने। जिसके पुत्र नहीं है तो वो वैसे ही समाज में अपने आप को एक कमजोर मानता है, हेय मानता है। और जिसका संतान बिल्कुल नहीं, वो तो अपना जीवन कति व्यर्थ मान रहा है बिना ज्ञान के। हम दुखी बिना ज्ञान के हैं यहाँ पर। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर ये बातें हमें दुखी नहीं करेंगी। फिर उसके अतिरिक्त जैसे चलो ये भी सब्र किया, भाई कन्या कन्या होगी, पुत्र नहीं हुआ, आगे फिर उन बहनों को, उन कन्याओं को कितना कष्ट है। जैसे उनके बच्चों का विवाह होता है, भाई है नहीं तो भाती नहीं आया, तो उस दिन बहन खूब रोए, चाहे दूसरा चाचे तहुआ का कितना ही कुछ कर लो। फिर एक हमने और बना रखा है रक्षाबंधन। उस रक्षाबंधन के दिन फिर रोए वह बहन जिसका भाई को ना। बता वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की? वो भाई जो रक्षाबंधन जिसका बांधन जावे है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू। एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन, नाम लेने से पहले की बात है, नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये, क्योंकि हमें पता लग जाता है। अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, अपने मायके, रक्षाबंधन वाले दिन।
इंतजार कर रही थी, भाई आओगा, रक्षाबंधन उसके बांधोगी, पहुंची। भाई नहीं आया, उसका शव आया। उस दिन एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, टक्कर मार कर रोए सारा परिवार। अब जो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, बहन की कहां से कर देगा? जो रक्षा करने वाला है उसकी तरफ ध्यान भी को नहीं। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि तुम समर्थ का शरणागहो रंगोरी हो, और फिर कबू ना हो अकाज राम रंगोरी हो। पुण्यात्मा, यदि आपने परमात्मा पाना है और काल के जाल से छूटना है तो इस परमात्मा के दिए विधान के अनुसार चलना पड़ेगा। लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। बहु सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे, बहुर बहुर नहीं आ वही फिर मुक्ता पद पावे। ऐसे हरिजन संत हैं संगत नियत की जय, इस झूठे जग की लाज में ना ही चत दीजिए। किसी भी संत का इतिहास देख लो, उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तृण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। मीराबाई ने कहा था, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। यानी हम अपने उद्देश्य पर इतने दृढ़ होंगे तब हम परमेश्वर के निकट पहुंचाएंगे। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि इन पिछलों की जो रीति है ये तुरंत त्यागनी होंगी। हमारे लिए सबसे बड़ी बाधक ये है, तो उनको हमें त्याग कर ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर का पाना बहुत आसान है। काल ने हमें इतना उलझा दिया, जैसे भी किसी के संतान नहीं है उसको ये कहा करते थे कि इसकी तो सुबह दर्शन भी ना होने चाहिए। नो कहा करते जिसका संतान नहीं है कि ले बता सुबह सुबह यू लाग गया न पूता माथे के। और वो भी महसूस करते थे कि अब ये सोच रहा होगा, ये करते हैं अभी भी ऐसा ही है। ये पुण्यात्माओं, यहां काल की सारी उल्टी रीति है। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित होंगे तो परमात्मा के विधान अनुसार हमने चलना पड़ेगा। लोकलाज की परवाह नहीं करनी होती। कबीर साहब कहते हैं, मात पिता स्त्री आलस बंधु कान, और संत मिलन को जब चले ये अटकाव आण, इनका अटकाया अटके नहीं, और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है आवागमन नशा। मात पिता जैसे छोटे बच्चे हैं तो माता पिता जिनको ज्ञान नहीं वो बाधा करते हैं, और जिनके बच्चे बड़े हैं माता पिता चाहते हैं सत्संग की तरफ चलें तो वो बच्चे बाधा करते हैं। किसी की पत्नी बाधा करती है, किसी का पति बाधा करता है, कहीं बंधु कान यानी लोक लाज। तो परमात्मा कहते हैं कि इनका अटकाया अटके नहीं, इनका रोका रोका नहीं, और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है फिर आवागमन नशा। तो पुण्यात्माओं, सत्संग माने से ज्ञान होता है जैसे जिसके संतान नहीं है। परमात्मा के विधान अनुसार वो सबसे उत्तम पुरुष है यदि उसको भक्ति मिल गई है। नाम नहीं मिला तो फिर कोई दिक्कत को नहीं होते संतान है या ना है। ये नहीं है कि जिनके संतान है वो निकम्मे हैं, नहीं। जैसा दृष्टिकोण समाज का था उसके विपरीत है परमात्मा का विधान। हम यहां पर एक दूसरे के साथ संस्कार वश जुड़े हैं, और जब भी जिसका संस्कार पूरा हो जाएगा तुरंत यहां से चला जाएगा,
चाहे उसका कितना ही जरूरी आवश्यक कार्य शेष हो, आपको खूब पता इस बात का। तो ऐसे किसी के पुत्र युवा मर जाते हैं। एक व्यक्ति ने अपना पुत्र पढ़ाया, खूब शिक्षा ग्रहण कराई उसको, और इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, और उसको पोस्ट भी प्राप्त होगी, नौकरी भी प्राप्त होगी, विवाह का समय रख दिया, विवाह से 3 दिन पहले एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। अब इकलौता पुत्र था, अब क्या कहें, अब रो रहे हैं टक्कर मार के बेचारे। तो पुण्यात्माओं, ये सोचना पड़ेगा कि जिसका जितना समय, जिसका संयोग संस्कार जिसके साथ है, उतना ही रह सकोगे। परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद और पूरा ही परिवार मालिक के चरणों में लग जा, उसका तो कहना है कि नहीं तो जो लगेगा उसको राहत अवश्य मिलेगी। तो ये इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी यदि नियम ठीक रखेंगे। जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाणा। परमात्मा कहते हैं, हे जीवात्मा, जब तक तू हमारी मर्यादा में है तब तक काल का दाव नहीं लगेगा, काल का तीर नहीं लगेगा। परमात्मा की मर्यादा ये नियम है कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। परमात्मा बता रहे हैं कि 100 वर्ष ये साधना कर रहे हैं, हमने जो बता रखी है, और एक दिन आन उपासी, एक दिन आन उपासना कर ली, अन्य जो पूजाएं कर दी, तो कहते वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो ये मर्यादा खंड नहीं होनी चाहिए। हमारे नाम को बहुत दृढ़ता से हमने नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ाना है। फिर देखना खेल मालिक के, तो जो निसंतान हैं उनका आगे कोई लेन देन नहीं है, उनका आपस में संस्कार किसी से शेष नहीं है। संत मत के अनुसार वो बहुत उत्तम आत्माएं हैं, यदि उनको ये मार्ग मिल जावे तो। अन्यथा तो फिर परमात्मा कहते हैं वो तो जो सत साधना नहीं कर रहे, वो तो चाहे संतान है या ना है, दोनों एक जैसे। हाँ, जिनके संतान है वो भी बुरे नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति मिल गई, पूरा परिवार भक्ति करे, बच्चों को भी लावे शरण में। फिर उनके जो संस्कार हैं वो बहुत आसानी से हल्के होकर निमट जाएंगे, और ये अननेसेसरी चोट नहीं लगने दे भगवान। आयु बढ़ा देगा ये परमात्मा, ये समर्थ शक्ति है। और कोई परमात्मा जिनको हम भगवान मानते थे वो हमारी आयु एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे हम भगवान विष्णु को समर्थ मानते थे, उन्हीं के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण थे। जैसे भक्त प्रश्न करते हैं कई बार है कि जैसे श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिराकर जीवित कर दिया था, तो वो समर्थ शक्ति मान लिए। इसी एक एग्जाम्पल था। परमात्मा कबीर जी ने कहा, धर्मदास जी ने यह प्रश्न किया था, तो परमेश्वर ने कहा कबीर देव जी ने धर्मदास जी से कि श्री कृष्ण जी ने अपना सगा भांजा क्यों नहीं जीवित किया अभिमन्यु, जब वो पहले दिन महाभारत के युद्ध में मारा गया था। उसका सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका, जिसकी आवश्यकता थी जीवित करने की। और वहां जा पंगा लिया, मोरध्वज का बेटा कटवा के जीवित कर दिया। धर्मदास एकदम स्तब्ध हो गया कि भगवान सच्ची बात है, उनका तो कुलनाश हो रहा था और वहां भगवान उसको जीवित नहीं कर सके। तो प्रश्न किया क्या कारण है प्रभु। तब परमेश्वर ने बताया कि ताम्रध्वज की आयु शेष थी और इतनी सिद्धि इनमें है कि उसको आपे कटवाया, आपे जीवित कर दिया। लेकिन
अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, श्री कृष्ण कुछ नहीं कर सके और ना कर सकते। तब धर्मदास ने कहा कि भगवान सचमुच वहां तो अति आवश्यकता थी उसके जीवित करने की। सूरवीर योद्धा था और साथ में जरूर थी, युद्ध हो रहा था, पांडवों का कुल नाश हो रहा था। तो इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना ये तीनों तापम। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे हम इस परमेश्वर की शरण में आएंगे तो ये हमारी आयु भी बढ़ाएगा। ये समर्थ शक्ति है, परमेश्वर है, ये पूर्ण परमात्मा है। अब वेद गवाही देते हैं कि भगवान उम्र बढ़ा देता है, लेकिन वो है कौन परमात्मा? वो पूर्ण ब्रह्म है, कबीर देव है। आपको थोड़ा सा यहां दिखाते हैं कि समर्थ शक्ति। देखो, सुनी सुनाई बातें तो हमने बहुत सुन रखी है, दंत कथाएं सुन रखी है। जब तक आप आंखों नहीं देख लोगे प्रमाणों को, आपको विश्वास नहीं हो सकता। क्योंकि हमने वेदों की आड़ में जो भी वक्ता होते थे, पुराणों का, वेदों का और गीता जी का रेफरेंस देकर सत्संग किया करते थे। और हम ये सोचा करते थे कि संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत साथ बोल रहे हैं, इन्होंने सदग्रंथों को सही जाना होगा। और ये कहा करते थे कि जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा, जिसकी आयु जहां समाप्त होगी वो तो होगी ही होगी, इसका कोई विकल्प नहीं। और परमात्मा की महिमा गुणों में लिखा है कि परमात्मा हमारी आयु बढ़ा सकता है, हमारे जीवन में आने वाले संकटों का नाश कर सकता है। वो कर कैसे सकता है? जो उसकी साधना सत्य हो, शास्त्र अनुकूल हो, तब उनको सब राहत मिलती है। परमात्मा हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, आपको वेदों में दिखाते हैं। क्योंकि शिक्षा का हमें एक लाभ है तो यही है कि हम सदग्रंथों को स्वयं समझ सकते हैं। और जब तक हम नहीं समझेंगे, कोई भी हमें बंडा दे, कुछ भी कह दे, हम उससे की मान लेंगे। जिस कारण से आज तक हम यह भटक रहे हैं, अरे नकली संतों के पीछे लटक रहे हैं। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद, आपको दिखाते हैं ये कहां से प्रकाशित है। सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। उनके फोन और फैक्स नंबर ये है। ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त 161 161 और मंत्र नंबर 2 में, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो, यानी जिसका जीवन नष्ट होने वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को, ये देखिए ना, दयानंद के भक्ता ने मैं वैद लिख दिया यहाँ पर। क्योंकि दयानंद ये मानता था भगवान कुछ नहीं कर सकता, ना रोग काट सकता, ना उम्र बढ़ा सकता, इसलिए यहां लिख दिया मैं वैद। कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूं और 100 शरद ऋतुओं तक जीने, यानी 100 वर्ष तक के लिए इसको बलयुक्त करता हूं। अब यहां जो इन्होंने जानबूझ कर बकवाद करी, इस मूल पाठ में इसमें वेद का जिक्र नहीं। क्योंकि वेद कोई मेडिसिन की बुक नहीं है, ये भगवान की जानकारी, महिमा है इसके अंदर। अब यहां तो ये लिख दिया, फिर परमात्मा कहते हैं चोर चोरावे तुंबड़ी, वो गड्ढे पानी में
वो गाड्डा हुआ ऊपर आओ ना, सच्चाई छानी ना है। लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा ने इनकी आंखें बंद कर ही दी। जहां इन्होंने सच्चाई लिख दी, ना चाहते हुए भी लिख दी, भगवान ने लिखवा दिए, तो क्या लिखे थे ये देखना। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 और मंत्र नंबर इसका भी 2। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। यहां भूल गए वैद लिखना। देखा परमात्मा के चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डा हुआ ऊपर आओ ना, सच्चाई छानी ना। और दिखाता हूं इन्हीं के अनुवाद में, ये देखिएगा। एक और दिखाते हैं इन्हीं परमात्मा। देखो ये दास अगर आपको अनुवाद करके या बताओ वैसे तो नहीं जच्चे, क्योंकि ये आपका तो यकीन हो जा, पर ये होड़ ना दें, ये कहकर आपको भ्रमित कर देते कि रामपाल को संस्कृत ना आती, ये वेदों के अनुवाद करेगा। और यही हमारे भगवान कबीर साहब के बारे में इन्हें टांग अड़ाई थी कि कबीर अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत का मामला, ये सदग्रंथों को समझना इस जुलाहे के बस का कहां, ये झूठ बोलता है। और परमात्मा सारी सच्ची कहा करते थे। 600 वर्ष पहले ये बात बताया करते। तो दास आपको सदग्रंथों से रूबरू करा रहा है, और उन्हीं से आज परमात्मा ने अनुवाद करवा रखे हैं। इन्हीं के अनुवाद में परमात्मा ने दया बख्शवा दी। नन्नू कौन कहे मैं काल हूं, और वो भगवान कोई और है। गीता में सारे रेफरेंस दे दिए। मालिक ने कहा दिया, उसने पता ही नहीं वक़्त के बोल गया, और सच्चाई बुलवा दी दाता ने ब्रह्म काल तय कि वो परमात्मा तो कोई और है, और मैं तो काल हूं, सबको खाने आया हूं। जब तो नांडी पाक के कही थी कि यहाँ कोई मैंने टोकड़ियाँ नहीं कि मैं कह दूं, और कह दी सच्ची, अब हमारा काम आ गई। अब देखो ये ऋग्वेद है, इसका द्वितीय भाग है। ये लंबी बड़ी जल्द में है। ये प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, और ये कहाँ से छपा है? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखबेलपुर दिल्ली, दूरभाष इतना दान संस्थान। और ये है इसका अनुवादक महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ, और दान संस्थान करोल बाग नई दिल्ली से इसने इसका अनुवाद किया है। देखिएगा ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये 161, और ये दूसरा मंत्र इसका। इसने बहुत बढ़िया अनुवाद किया। सच्चाई, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, उसकी आयु ना रही हो, यदि वह सीमा से परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में भी सही लिखा है इसने। यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी उम्र खत्म होगी, वो आयु हो रही है और उसका रोग सीमा से पार हो गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। अब बिल्कुल सही लिखा है, पर क्योंकि परमात्मा की महिमा है, या किसी वैद्य की और दवाइयां की किताब नहीं है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त, ये 80 का है, यहाँ 82 गलत लिख रखा है यहाँ, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ है 80 से, और आगे 82 अलग होता है। ये यहाँ से है, ये 79वां सूक्त समाप्त हो गया, ये 80वां चल पड़ा, और इसका ये 2 मंत्र यहाँ है, या आगे 82 शुरू हो जाता है, इसलिए 81 यहाँ लिख दिया उन्होंने, 81 भी पूरा हो गया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਮਰਜੀਤ ਦਾਸ ਸਿੰਘ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਗਾँव ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? मैं सिख धर्म भी थी। 2002 में अमृतपान किया, दस्तार सजाई थी, बाणा पाया हुआ था, कृपान थी मेरे को 2.5 फुट दी। मेरी बेटी और बेटे की शादी हुई, मैं वही लिबास रखिया। 5 बाणियां का मैं पाठ करती थी। रात को 2:30 बजे मैं उठती थी, केशी स्नान करती थी। मर्यादा विच में इतनी रही कि भगती पावरफुल होवे। मेरी बेटी की शादी थी, मैं उस शादी विच भी बेटी के जो खान पान सब कुछ बनया था, मैं कुछ नहीं खाया। 3 दिन मैं दुध पींदी रही कि मेरी इस मर्यादा पंगता ना होवे। 52 मर्यादा थियां इस सिख धर्म विच। और रात के 2:30 बजे उठ के मैं पाठ करना सुखमनी साहिब का 5 बाणियां दा। और अपने नितनेम के बाद मैं 10 बजे फिर चल जाना, 12 बजे आना। मैं अपनी समाधि विच रहिंदी थी, उहदे विच मेरे पर बहुत बड़ी रिद्धि सिद्धि का प्रभाव पड़िया जी। फिर संगत विच गलबात होने लगी। फिर उहदे विच मैं 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਤੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਰੱਤੇ ਬੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਘਰੀ ਬੈਠ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? जी मैं सिख धर्म विच इतनी रंग चुकी थी ना भी मैनू संसार वाला कोई भी संत किसी तरह की मैनू कोई अंदर ते इच्छा नहीं थी कि सिख धर्म के उपर कोई संत है। मेरा बेटा जिस टाइम छुट्टी आया 15 दिन की, तो 6 तरीक को आया, 7 तरीक को ही पानी विच बह गया, 12 दिन बाद मिलिया। इन्ना बड़ा मेरे नाल हादसा होया और उसका मैं मुख भी नहीं देख पाई है, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ। ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਚਾਰਨ, ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਵੀ ਆਰੰਭ ਥਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੜਾ बुरा मेरे ਨੂੰ सज़ा मिली। फिर जी मेरे 6 महीने बाद, बेटे जाने के बाद 6 महीने बाद मेरा एक्सीडेंट होया। उस तो उपरंत मेरे मन च फर्क पै गया कि इन्हां संतां ने किसी तरह दे भी मैनू रास्ता नहीं दिता है। मैं इन्नी मर्यादा विच भी रही और भगती भी की, बेटा भी चल गया। अब मैं एक विनती की गुरु नानक जी अगे कि गुरु नानक जी तुसीं ना मैनू एक हिरदे 'च जख्म दिता, एक बाहर ते दिता। हिरदे विच तां जख्म मेरे पुत्तर दा गा भी वो 27 साल का था, मेरे अगे गया। और बाहर का जख्म तुसीं ये दिता भी मेरी हक भी बंद कर दी। इतना भयंकर एक्सीडेंट होया मेरा। उस दौरान ही इस प्रार्थना के बाद ही 6 दिन बाद, 6-7 दिन बाद मैनू फोन आंदा है रात को। फिर मैं फोन चक्या नहीं हैगा, घर दे मुखी नूं कहा भाई फोन देख लिया, कहते नहीं होना किसी रिश्तेदार का। पर अंदर कुछ मेरे इंदा कि कोई होर ही नंबर है। जब सवेर का टाइम होया मैं ही वो नंबर मिला दिता, नंबर को दिखते नहीं तो मैं ही मिला दिता। तो फोन बरमाले आश्रम च मिलिया। उत्थे फिर उस भगत ने कहा, मैनू ये नहीं पता भगत है, उन्हें कहा भी दसो भाई तुहाडा फोन आया। मैं कहा जी मेरा बेटा संसार ते चले गया, भी मैनू दसो मैं जीवन अगला किस तरह जीऊँ। मेरा मन बहुत अंदर टेंशन दे नाल 24 घंटे घिरिया रहिंदा। उन्होंने कहा अपना एड्रैस लिखाओ, तुसीं तुहानूं असीं ज्ञान गंगा पुस्तक भेजदे हैं और इस ज्ञान गंगा नूं पढ़ के देखना। इस पुस्तक विच तुहानूं अपने आप पता लग जाना कि संसार च रहना किस तरह है। उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक 22 दिन दसी थी, 15 दिन बाद पहुँच गई। पर मैं ज्ञान गंगा पुस्तक के 2 ही पन्ने पढ़े थे, तो भी मेरे इन्ने समझ नहीं आई। अंदर तो इतनी तैयारी आत्मा ने पकड़ ली कि ये नाम दीक्षा लेनी है, पर ये पता नहीं था मैंने भी नाम दीक्षा लेके होना क्या है और किस जगह मिलती और अगे किस तरह गुरु जी ने सानू मंत्र देने, कुछ पता नहीं था। पर यही पता था कि मैं नाम दीक्षा लेनी है। परिवार वाला कोई मनने नूं तैयार नहीं था। यही गल कहते थे कि जिन्हों ने तेनों दसिया तो उहदे नाल ही चले जा। मैं कहा नहीं भी तुहानूं जाना ही पैना। जिस टाइम घर का मुखिया गया है नाल, पर उत्थे जाके भगतां नाल कोई गल नहीं हुई। घर भगतां ने ही गल कहा कि भाई तुसी ज्ञान समझ लो पहला फिर दीक्षा लियो। मैं कहा नहीं मैं दीक्षा अज ही लेके जाना। उन्होंने फिर कहा कि नहीं तुसी ज्ञान समझ लो। मैं कहा नहीं मैं दीक्षा अज ही लेके जाना। और मैनूं ये भी पता नहीं था कि नाम दीक्षा दे के
ਇਹ ਮੰਤਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਪਾਵਰ ਅੰਦਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚ ਗਈ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸਹਿਤ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 53 ਮਰਿਆਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮਖੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੜਫ ਤੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੇ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਕਸ਼ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਕਿ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ ਥਾ। ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੱਚੂੰ ਵੀ। परमात्मा मैंने ये आपने इन्नी सत भगती का जो रास्ता और मार्ग दिता, मंत्र दिते, तो सुने भी थे नहीं, कितनी असी पढ़े भी थे नहीं। फिर गुरु जी की कृपा नाल मैनू बहुत भयंकर बीमारी थी, फैटी लीवर दी। मैं अद्धा कप पानी का भी पींदी थी, वो मेरा पेट इन्ना बड़ा फुल जाता था, सोजा पै जाता था। बेटे जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा शरीर फुल गया था। सारी जगह जाए असी, हरिद्वार दिखाया, चंडीगढ़ दिखाया, जो भी देसी इलाज है सारे, मोहाली सारे डॉक्टरों ने दिखा लिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ नहीं आता था, यही गल कहते थे खाण पीण अपना सैट करो। वो सारा कुछ करके देख लिया जी। गर्म पानी पीने को कहा, वो भी करके देख लिया। और मूंगी की दाल तक उन्होंने मैंने पजा दिता कि मूंगी दाल ही खाओ, आप फुलका खा के नहीं सो सकते रात को। और जो प्रसाद है, कोई मिठी चीज़ है, किसी को टच नहीं करना, उसी दिन थोड़ा एडमिट होने पैना। उस दे नाल ही फैटी लीवर नाल ही इतनी बीमारी हो गई, सर्वाइकल और अंदर की मानस क्रिया इतनी कमज़ोर हो गई कि जिथे भी मैं चीज़ रखनी मैंने पता ही नहीं लगना कित्थे रखी। और कदे दरवाजे नाल मेरे पैर बज जाना, कदे सिर बज जाना, तुरने का भी मैंने पता नहीं लगना। उसने इन्नी भयंकर बीमारी ने रूप ले लिया। इन्ने टेस्ट कराए, किसी टेस्ट में कुछ ना आवे। फिर परिवार वाले भी कहते भाई इन्ना पैसा भी लग लिया, सब कुछ लग गया, तेरी भगती भी काम नहीं करी है, इन्नी भगती की है और इन्ना परहेज भी रख दी है, हुण तुसी आराम नाल जिथे हैगे इत्थे ही रहण दो, बस अपने शरीर बारे ही सोचो भी क्या बनना इसका। पर परमात्मा ने इतनी कृपा की, इतनी कृपा की, अंदर इतना जज्बा दिता मेरे अंदर कि मंत्र करने के बाद ही 8-9 दिन बाद ही मैं फुलका भी खाण लग पी, खिचड़ी भी खाण लग पी। और जो फ्रूट थे अंदर मेरे इतना मतलब सांस को बंद कर देते, वो फ्रूट भी खाण लग पी। मैं दुध मैंने इन्ना खतरनाक बैठता था कि अद्धा कप भी पी लवां तो उल्टी नाल उस टाइम ही बाहर निकल जाना। दुध भी पीण लग पी। फिर गुरु जी की दया नाल प्रथम मंत्र विच ही परिवार च थोड़ा सुधार इस तरह आण लग्या कि उन्होंने महसूस हो गया परिवार वालियां कि इसने जिद की इस नाम लेने वास्ते, कुछ तो है। फिर अपने कमरे च लग पाठ करन जाते थे, जपजी साहब का रह रास दा, उहदे विच उन्होंने रुकावट पाना आपे शुरू करती, पाठ च जाण नहीं लगे। फिर गुरु जी की आरती वाल ध्यान करन लगे और देखण लगे क्या करदी गुरु जी नूं हमनी अग करदी, क्या करदी, तो देखना शुरू किया। हौली हौली सारे कमरे विच आण लगे। 1 साल बाद फिर परिवार ने सारे ने गुरु जी की दीक्षा लई, मेरी बीमारी दूर हुई है। और ज्ञान विच जो भी किसी किस्म की गल का, कोई भी बाहर की गल करते थे, बड़ियां बड़ियां गल्लां करते थे, साडे गुरु ऐ करते, साडे गुरु ऐ, वो बोलना बंद किया। और सारा कुछ ही फिक्का लगन लगा कि ये कुछ नहीं है, ये जो समाज वाले दसदे है, बड़े बड़े महर्षि दसदे, भाई ये कुछ नहीं है, जो भी है गुरु जी कहा करते हैं। जीने दी राह दी पुस्तक विच गुरु जी ने जो भी दसिया है कि ये वेद शास्त्र पढ़ो इस तरह, तो फिर गुरु जी ने 721 पन्ने पर गुरु ग्रंथ साहब बारे जो लिखिया है, वो मैं अपने घर के मुखिया ने दसिया कि तेरा शक बहम है तो ये पढ़ के देख लै। प्राण संगली किसी भगत नूं कह के मैं बहुत दूर ते मंगाई, इत्थे मिलदी नहीं थी पंजाबी विच,
ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਲੇ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਣੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੋਕਸ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਲਿਖ ਗਏ ਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲੇ ਕਰਦੀ। ਸਭ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਥੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਭਗਤ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ थी उस कमरे 'ਚ भी कोई आंदा नहीं था कि इसका दिमाग ठीक नहीं रहा। मेरी मानस क्रिया गुरु जी ने इस तरह ठीक की है, जो मैंने चीज़ रख के पता नहीं लगता कित्थे रखी, वो बिना दवाई तो ठीक की। असी प्रार्थना गुरु जी को भेजी, गुरु जी मेरी मानस क्रिया ठीक नहीं है। गुरु जी का आदेश आया कि कबीर साहब परमेश्वर दिया करेंगे। महीने बाद मैनू मतलब जो दरवाजे विच मेरे पैर हथ सिर इद्दी बजदे ते चक्कर नाल सारे बंद हो गए, बिल्कुल ठीक हो गया, सीधी तुरन लगी मैं। फिर गुरु जी की कृपा नाल सारे ही परिवार का दृढ़ विश्वास हो गया, बिल्कुल ऐन मतलब मेरा सहयोग देन लगे। जिस टाइम मैं आश्रम जाना, सेवा च जाना, गुरु जी का यज्ञ भंडारा कोई भी आंदा उहदे विच मेरा सहयोग देन लगे। अज मैं गुरु जी की कृपा नाल अंदर ते बिना डर ते गुरु जी के आश्रम और नाम केंद्र सेंटर जाती। उस टाइम मैंने बहुत डर था जिस टाइम मैं गुरु जी शरण च आई कि इन्होंने मैनू किते भी जाने की रुकावट पानी। हौली 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 गुरु जी ने उसी तरह के बना दिते जिस तरह का मेरा मन भाव था कि गुरु जी को परमात्मा ही समझे। संत रामपाल जी परमात्मा है, संत नहीं है। संत बहुत पृथ्वी परमात्मा वो काम करता है जो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। गुरु जी वही काम करे करते। इस वक्त साडे नाल कोई सोच भी नहीं करता जो परमात्मा इस टाइम करिया करते। जो अज साडे दर्शक तुहानूं देख रहे हैं उन्हां नूं की संदेश देना चाहोगे? मैं उन्होंने संदेश तो नहीं दे सकती, मैं हाथ जोड़ के बेनती करती खास करे सिख भाई और भैनों कि भाई मैं 25 साल इस पंथ विच रही, हर सवेर एक नवा जंग हुंदा था। मैनू ये नहीं पता होंदा कल शाम मैं कित्थे होना तो कल सवेर मैं कित्थे होना। मैं रज के जोर ला लिया अपने तन मन ते, यात्रा ते भी, सेवा सिमन ते भी, अपने शरीर को कष्ट दे के भी मैनू राहत मिले। भाई ग्रंथ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर समझाने वाले ठीक नहीं है। ये मनो ना मनो, पर अपना ग्रंथ खोलो, उसनों देखो बिच क्या है, उन्होंने बारंबार पढ़ो। ओ भाई एडे बहुत सवा लाख दा रुमाला देंदे एक ग्रंथ पर, जिहदा दुख करोड़ों का ही है, उस दुख नूं सिंह नहीं जान सकते हैगे। मैं जिस दिन मेरा बेटा दरिया विच गया, रात नूं मैं 8 बजे मैंने खबर मिली है कि बेटा दरिया च चल गया। 8 बजे मैं केसगढ़ साहब जाके बैठी, किसी ग्रंथी ने नहीं मैंने पूछा बीबी तेरे नाल ये क्या भाना बरतिया, कहंदे दरवाजा नहीं खुल सकता हुण, दरवाजे बंद है। रात नूं 8 बजे बैठी उत्थे अरदासां करदी मेरा बेटा मिल जाए, मैनूं चाहे उहदी लत्त बांह टुटी भी, चाहे वो बेहोश है, कुछ भी है, पर मैनूं शरीर मिल जावे उहदा और मैं तुहाडा सिंह बनाऊंगी। रात दियां भाई 8 बजे दियां अरदासां करे दी मैं केसगढ़ साहब, सवेर दे 6 बज गए। किसी ने किसी की मेरी कोई गल नहीं सुनी हैगी और ना ही किसी पाठी ने मैंने कहा कि बीबी तू हौसला रख, तैनू को रस्ता मिलूंगा। मैं सब तो बड़ी ये बिनती करती है इन्हां सिंह भाइयों को कि तुसी बाणी पढ़दे तो किसी पर दया करो, तो दर्द समझो। जिस गुरु ने थानू जो मर्यादा दसी वो मर्यादा दे अंदर रह के ही काम बन सकता है, नहीं तो बहुत ही मतलब जिद्दां मेरे नाल होई है, ये देख लो किस ढंग नाल होई है, किसी नाल भी हो सकती। विश्वास एक भगत दा बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे विश्वास नूं बहुत बड़ी ठेस लगी है और मैं जिस तरह एक इस्त्री नूं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उंगलियां उठांदे सब कोई, सिंघां नूं तो चल ये होना है कि साडा दल है, जत्था है। मैं सब जगह जाके देख लिया। ये गोबिंद सिंह इत्थे जिहड़े अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ले के लड़ाई नूं जांदे थे, वो लड़ाई तो हरेक घर च एवें ही खड़ी हुई भी है। हुण तुसीं मन्नो ना मन्नो, वो तो जंग दे जंग जीतने वास्ते, हुण तो जंग तो अपने नाल एक दूसरे ने छेड़ लिया वा। थानू बुरी लगे चल गल खरी लगे, पर मैं देख लिया केसगढ़ साहब साडे घरां कोल 8-9 किलोमीटर दूर है। असी कोई दिन तिहार कुछ नहीं छड्डदे थे जिस टाइम पूरे जोश जलाल नाल इस तिहार च शामिल नहीं हुंदे थे और मर्यादा दा पाल नहीं करते। सब पता है परमात्मा नूं भी साडे नाल बणी क्या है। असली जिंदगी तो मेरी हुण है, 34 साल तो मेरे इस तरह चले गए जिस तरह कोई कार्टून हुंदा। भाई कार्टून नहीं है जिन्हों को लाभ नहीं मिलिया है। मैंने गुरु जी ने जो लाभ दिते है वो अच्छे परम पिता परमात्मा की निशानी है, अपने बच्चे को गोद विच रखदा वो पिता मिलना जरूर। जे इसे ग्रंथ विच तुसी देखो हुक्मनामे नाल गल नहीं बननी भाई,
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। सत साहिब सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें